Thank you, Dr. Panda, Director SCRT, and all our friends from all the 27 districts of Assam. I will be speaking on role of data in planning and management in general and very briefly in the state of Assam. I have divided my presentation into two parts. In the first part, let us discuss something about the Unified District Information System for Education, and in the second part, we will see the importance of data in education planning. We have been moving around the country for the last 2-3 months. Personally, करीबन 15-16 स्टेट्स के अंदर अभी हम जाके आए हैं, and we have seen that Unified DICE 2014-15 is going on smoothly across the country, including in the state of Assam. And the credit of this goes to none other than our friends sitting at the school level, who are our respondents. At the cluster level, the CRCCs, block level at the BRCs or BEO or block elementary education officers or district programmers or district project coordinators, or at the state level, MIS coordinators and other coordinators. All our friends have contributed significantly so far as Unified DICE is concerned. Because of your active participation across the country, we could able to establish management information system units across the country, not only at the district and the state level, लेकिन बहुत से राज्यों के अंदर ब्लॉक स्तर पर भी MIS यूनिट स्थापित की जा चुकी है पूरे भारत में. पहला सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हम सबका ये रहा है. दूसरा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हमारा ये रहा है कि let there be no data gaps, let the information is available on all aspects which are required for efficient formulation of the plan at the district and state level, both under the banner of सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रोग्राम. उन सब बिंदुओं के ऊपर डेटा उपलब्ध है, डिसएग्रीगेटेड डेटा उपलब्ध है. Cluster level, school wise, block wise, district level and state level, at all these levels the data is now available. That is also one of your important contributions. The third one, which is very significant, is that आप लोगों के प्रयास से जो इतनी मेहनत की है, उसकी वजह से ही the time lag in availability of educational statistics from earlier 7 to 8 years, it has come down to less than a year at the national level and only a few months at the state and the district level. ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है. 2014-15 का डेटा हमने 30 सितंबर को इकट्ठा किया. 3 महीने के अंदर ये सारा डेटा ज्यादातर राज्यों के अंदर, पूरे भारत के अंदर सारा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UDICE 14-15 has already been finished. आसाम में भी करीब ये पूरा हो गया है. डेटा की चेकिंग चल रही है, डेटा कंसिस्टेंसी को देखा जा रहा है, फॉर्म सब भर के आ गया है. ये सब बहुत कम महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है. और इन सब का श्रेय, if the credit goes, it goes to friends like you and all other friends sitting in rest part of our country, located in around 662 districts, in about 7,000 blocks, in about 70,000 clusters in all the 36 states and union territories. आपके कंट्रीब्यूशन के देखते हुए ही your contribution has been recognized not only at the national level but it has also been recognized at the international level, and you all are the recipients of 4 national awards: E-Governance Award, E-India Award, Manthan South Asia Award, Indian Express Innovation Award. The real recipient of all these awards is none less than officers like you, those who are sitting here today and those who are not sitting today. This is not a mean achievement. दोस्तों, ये छोटा मोटा काम नहीं है.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम हम सब ने मिलकर किया है और आज डाइस इस लेवल पे पहुंचा है जिसको कि अब यूनिफाइड डाइस के नाम से जाना जाता है। ये केवल आपकी वजह से ही है और जो बाकी अभी कुछ चीजें करनी है, वी हैव अचीव्ड ए लॉट बट स्टिल देयर आर ए फ्यू एरियाज ऑफ कंसर्न और उन सब को ठीक करने ही केवल आपके मार्फत ही उसको ठीक किया जा सकता है। बीआरसी और सीआरसी के मार्फत ही उसको हम ठीक कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव एनी शॉर्टकट मेथड टू फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, कवरेज, यूटिलाइजेशन, शेयरिंग, डिसेमिनेशन ऑफ आवर डेटा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सबको देखते हुए अभी दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दे हैव टेकन two important decisions. One decision is that henceforth all the statistical publications in case of school education will be based on the data generated through the DICE. इसका मतलब क्या हुआ? All the parallel collection of information system will be stopped. They have already been abandoned. And DICE is the only source of information. इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया, DICE आपका डेटा it has now attained the status of official statistics. DICE अब official statistics बन गया है। चाहे वो असेंबली में जवाब देना हो या पार्लियामेंट में जवाब देना हो, राइट टू इंफॉर्मेशन में जवाब देना हो, कहीं पर भी अगर स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर चर्चा की जानी है तो डाइस इज द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेरी सून इट वुड आल्सो बी अवेलेबल फॉर द ईयर 2014-15। बहुत ही बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो अभी लिया गया है वो ये है कि अब से अगर एनसीईआरटी ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे करती है तो NCERT will collect information only on those variables which are not school based, which are not available in the DICE. ऐसे वेरिएबल जो डाइस में नहीं है, जैसे नंबर ऑफ habitations having schooling facilities within 1 kilometer, within 3 kilometer, ऐसे वेरिएबल ही अब ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाएगा। बाकी सारे वेरिएबल जो डाइस में हैं वो सब डाइस से लिए जाएंगे और एनसीईआरटी अलग से स्कूल वेरिएबल्स के ऊपर किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं करेगा। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आप सबकी। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी उपलब्धियां होने के बाद, ये नए जो डिसीजंस हो गए हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सबकी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई है। डेटा की कवरेज को, कंसिस्टेंसी को, यूटिलाइजेशन को, शेयरिंग को, क्वालिटी को, रिलायबिलिटी को, डिसेमिनेशन को, अब ये सब करने के लिए we should now feel more responsible than we were in the past. इतना अचीव होने के बाद भी हमारे डेटा में कुछ कमियां रह गई है। आपको मेरे से ज्यादा पता है। अभी भी बहुत ही ध्यान से ये डेटा नहीं भरा जाता है, बहुत ही कैजुअली कहीं कहीं भरा जाता है। इस पूरे सिस्टम में, डेटा के सिस्टम में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डेटा ढंग से दे दिया, पूरा दे दिया, सही दे दिया, अधूरा दे दिया, गलत दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम एडिशनल इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं। क्यों नहीं ये कार्य डाइस के कार्य से शुरू किया जाए? ये काम क्यों नहीं? जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ये कार्य हम वहां से शुरू कर दें। आज की तारीख में इन द होल सिस्टम, एज आई ऑलरेडी सेड, नो वन इज अकाउंटेबल सो फार एज टाइमली एंड करेक्ट सप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। तो मैं ये कह रहा था, अभी भी हमारे यूनिफाइड डाइस में बहुत कमियां रह गई है। उन कमियों को अगर कोई ठीक करवा सकता है तो आप लोग जो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर लेवल पे कार्य करने वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं,
ब्लॉक स्तर पर कार्य करने वाले ऑफिसर्स हैं और सबसे ज्यादा क्लस्टर लेवल पे कार्य करने वाले सीआरसीसी हैं, वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं और आगे आने वाले वर्षों में उन्हें ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। हमें ये पूरा पता है कि अगर डाइस की कवरेज और क्वालिटी को बढ़ाना है तो सीआरसी हैज बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सीआरसी वुड हैव टू बी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कमिंग ईयर्स। कुछ कमियां, जैसे मैंने कहा, कुछ कमियां रह गई है बहुत। ये आपको पता है जो हमारा फॉर्म है वो तो अब सॉफ्टवेयर से छपता है और जब ये सॉफ्टवेयर से छपता है तो उसमें पुरानी इंफॉर्मेशन, पिछले साल की सारी इंफॉर्मेशन छप के आती है। जब ये स्कूल तक पहुंचता है, मुझे ये भी पता चला है कि आसाम में आरएमएसए और एसएसए में कोऑर्डिनेशन की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। पहला वर्ष जो हमारा 12-13 था उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रह गई थी। एक ऐसा मैसेज पूरे भारत में चला गया, उससे ये लगा कि ये यूनिफाइड डाइस का कार्य तो केवल सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए अधिकारियों का ही है, जबकि ऐसा नहीं था। क्योंकि डेटा कैप्चर फॉर्मेट एसएसए में छपा, डेटा की एंट्री एसएसए में हुई, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी ज्यादातर एसएसए वाले हमारे अधिकारियों ने किया, तो एक ऐसा मैसेज पूरे भारत में चला गया, ये जिम्मेवारी तो केवल एसएसए से जुड़े हुए एमआईएस और प्लानिंग कोऑर्डिनेटर्स और एमआईएस के कोऑर्डिनेटर की है। कुछ जगह पे, कुछ स्टेट में जहां सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएसए के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स एक थे, वहां पर ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम कम थी, बाकी दूसरी जगह पे ये कुछ ज्यादा था। ये पहला वर्ष था हमारा 2012-13 जब हमने यूनिफाइड डाइस को शुरू किया था। लेकिन दोस्तों 2013-14 आते आते ज्यादातर ये सभी प्रॉब्लम सब ठीक हो गई और अब 14-15 में देयर इज एब्सोल्युटली नो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम बिटवीन द ऑफिसर्स दोज हु आर वर्किंग फॉर आरएमएसए और एसएसए और फॉर सेकेंडरी और फॉर द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन। बहुत स्मूथली पूरे भारत के अंदर चल रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था डेटा की गुणवत्ता की, डेटा की क्वालिटी की। इतना कुछ अचीव होने के बाद भी अभी कुछ कमियां हम में रह गई है। बड़ी बड़ी स्कूलों में जहां पर 2,000 3,000 एनरोलमेंट है, 150 टीचर है, 80 टीचर है, वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकती है, हमारी सरकारी स्कूल में भी बड़ी बड़ी स्कूल बहुत सारी हैं। उन स्कूल्स के अंदर ये कतई संभव नहीं है कि हेडमास्टर साहब खुद उस फॉर्म को भरते हैं, तो ये जिम्मेवारी हेड टीचर को या दूसरे अधिकारियों, दूसरे टीचर्स को दे दी जाती है। और जब ये पूरा भर के आ जाता है हेडमास्टर साहब के पास में, प्रिंसिपल साहब के पास में, तो जनरली हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब केवल अपना सिग्नेचर करके ठप्पा मारते हैं और कह देते हैं भैया मेरा काम तो पूरा हो गया, उसको चेक भी नहीं करते क्या भर के लेके आया। ये हकीकत है, ज्यादातर जगह पे चेक नहीं होता है। प्रिंसिपल साहब केवल अपना सील और सिग्नेचर देने के अलावा देखते भी नहीं है पलट के कि क्या हेड टीचर इसमें भर के लेके आए हैं। अब समय आ गया है कि हेडमास्टर साहब जो भरा हुआ डेटा कैप्चर फॉर्मेट है उसको भी पलट के तो देख लें, भरने वाले जो अधिकारी है वो भी देखेंगे हेडमास्टर साहब तो अब चेक कर रहे हैं यार, पहले तो कुछ इसको देखते ही नहीं थे, अब मेरे को ईमानदारी से और पूरा सही डेटा भरना पड़ेगा। तो ये बात तो अब हमें करवानी है, अगर नहीं करवाई है तो करवानी है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्री प्रिंटेड है, उसमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल, स्कूल का नाम, 11 डिजिट स्कूल आईडी, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल कैटेगरी, स्कूल में कितने कमरे हैं, कितने टीचर्स हैं, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट। तो वो सब छप के ही आता है। हमने ये पूरी कोशिश की है इस बार पूरे भारत में कि भैया छपे हुए प्रिंटेड फॉर्म को भी चेक करना है। हमारी मनोवृत्ति है किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म भरते वक्त हम केवल यही देखते हैं कि उसमें खाली जगह क्या है, उस खाली स्थान को भर देते हैं, भरे हुए को कोई नहीं पढ़ता है। हमने इस बार पूरा जोर लगाया, पूरा कोशिश किया कि भरे हुए फॉर्म को भी आपको चेक करवाना है और जहां कहीं भी गलती है, एरर है या गलत इंफॉर्मेशन है उसको लाल स्याही से सर्कल कर दें, ताकि हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट जब वापस डेटा एंट्री लेवल पे पहुंचे तो वो जल्दी से जल्दी ये सब ठीक कर लिया जाए। इसके ऊपर भी हमने पूरा ध्यान लगाया। हमने ये भी कोशिश की कि सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स भरे हुए फॉर्म को 100% बेसिस के ऊपर चेक करें, बीआरसी लेवल पे भी कोई 20% चेकिंग हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंसिस्टेंसी मॉड्यूल को चलाया जाए। ये सब करने के बाद, ये सब ठीक करने के बाद में पूरे इंडिया के अंदर, आसाम में भी फिर हम 14-15 का जो स्कूल रिपोर्ट कार्ड है उसको सॉफ्टवेयर से छापते हैं और वापस स्कूल तक पहुंचाए।
देखने के लिए कि कोई डेटा एंट्री के अंदर कोई कमियां तो नहीं रह गई। ये काम भी हमने इस बार किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी डेटा की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। ये सारा करने के बाद अभी भी हमारे डेटा को भरते वक्त कुछ कमियां अभी भी है, और ये बहुत ही छोटी छोटी कमियां हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कमियां हैं। इन छोटी छोटी लिमिटेशंस की वजह से ही बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह डाइस या यूनिफाइड डाइस की क्वालिटी कवरेज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, और ज्यादा बार हमारे पास में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की कमियां हैं। एक दो कमियां मैं आपको बता देता हूं। एक तो स्कूल की कवरेज के बारे में कहा जाता है, मुझे यहाँ पे बताया गया है कि इस बार इन्होंने पूरी कवरेज कर ली है, प्राइवेट स्कूल से डेटा लेने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी राज्यों में प्राइवेट स्कूल से बहुत मुश्किल से डेटा दिया जाता है। हमारे CRC एक बार, दो बार, 3 बार स्कूल में जाता है और फिर उसको भरा हुआ फॉर्म मिल जाता है, उसी में वो खुश है, क्योंकि अंदर खोल के भी नहीं देखता है कि उसमें कितना भर के दिया है या नहीं देता है। वापस स्कूल से आना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आसाम एक अलग राज्य, अब एक नया राह बाकी राज्यों को दिखाई है। अभी इसी महीने के अंदर आसाम ने एक आदेश जारी करके सभी प्राइवेट और सभी स्कूल्स को ये कहा गया है कि आपके पास में यूनिफाइड डाइस का कोड होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी बोर्ड से एफिलिएशन और ये है वो सब रद्द कर दी जाएगी। इसकी वजह से भी प्राइवेट स्कूल आगे बढ़कर हमें डेटा दे रहे हैं। 2014-15 में आपने FM रेडियो पे और बाकी जगह पे बहुत कैंपेन चलाए, उससे भी हमें मदद मिली है कि बाकी जो विद्यालय स्कूल छूट गई थी वो भी डाइस के कार्य से जुड़ जाए। मैं कह रहा था छोटी छोटी कमियां हमारे डेटा में अभी भी है। कवरेज की बात तो अलग है, डिसेमिनेशन की बात अलग है, यूटिलाइजेशन और शेयरिंग की अलग बात है, लेकिन भरा हुआ फॉर्म में ही अगर कमियां रह गई, आप प्लानिंग कितना भी अच्छा कर लें, शायद जो हम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो शायद अचीव नहीं हो पाए। अभी हम डेटा का एनालिसिस कर रहे थे, स्कूल वाइज डेटा देख रहे थे, तो हमने ये देखा बहुत से स्कूल में ये बताया गया, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही ब्लॉक में ये कहा गया कि पिछले साल स्कूल है वो 220 दिन चला, द स्कूल फंक्शन फॉर 220 डेज। उसी ब्लॉक के अंदर दूसरे स्कूल ने बताया उसका स्कूल फंक्शन किया 99 डेज। अब ये संभव है क्या? आप इसको ठोक बजा के चेक करवा लें, क्या भैया ऐसा संभव है क्या वो स्कूल बाद में तो नहीं खुला, उसकी वजह से हो, कम से कम हमें उसका रीजंस पता होना चाहिए कि एक ही ब्लॉक के अंदर, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल अगर 225 दिन चला है तो बाकी का स्कूल 90 डेज ही क्यों चला। और जब ये हम नेशनल लेवल पे ये कंप्यूट करते हैं इंडिकेटर्स, नंबर ऑफ डेज, स्कूल फंक्शन, तो बड़े एब्सर्ड रिजल्ट आते हैं। एक तो छोटा सा ये हो गया। ये भी हमने देखा है बहुत से स्कूल्स में, यहाँ भी और बाकी राज्यों में भी ये बताया गया कि टीचर एक दिन में 10 घंटे स्कूल में पढ़ाता है। अगर ये सही है तो उसको सही रहने दें, ठीक नहीं करें, पर चेक जरूर कर लें कि ये संभव है क्या? 24 घंटे में से 10 घंटे टीचर स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? अगर टीचर 10 घंटे स्कूल में पढ़ा ले तो हमारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, हमारा तो उद्धार हो जाएगा हमारा तो। लेकिन दोस्तों चेक जरूर कर लें कि यह संभव है क्या कि 10 घंटे स्कूल में टीचर पढ़ा सकता है क्या? और तो और कुछ जगह पे, कुछ स्कूल ने तो ये भी बताया कि बच्चा भी 10 घंटे तक स्कूल में रहे। अगर ये संभव है, सही है, तो आप इसको चेंज नहीं करें, लेकिन चेक जरूर कर ले। हमें पता होना चाहिए कि भैया ये कैसे संभव है, 10 घंटा स्कूल में बच्चे कैसे हैं और 10 घंटा टीचर स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं, इसको जरूर चेक करवा लें। कुछ जगह पे, कुछ स्कूल्स में हमने ये भी देखा कि हम तो कमाल कर रहे हैं, 18 साल से भी कम उम्र के हमारे पास में टीचर है। ये संभव है तो रहना दें, चेंज नहीं करें, बट चेक जरूर करवा लें कि आपके यहाँ अलाउड है क्या 18 साल से छोटे बच्चों को, या बच्चे कहूंगा मैं तो, कि टीचर बना दिया जाए। अगर संभव है तो रहने दें, चेक नहीं करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भैया ये गलती से तो नहीं हुआ, वास्तव में 18 साल से छोटा ही है। चलो ये तो 18 साल की बात हो रही है, लेकिन कुछ विद्यालयों ने तो और भी कमाल किया, वहां पे टीचर की आयु एज 99 ईयर्स है। ऐसा संभव है क्या? नहीं है संभव। अरे भैया चेक करवा लो यार, हम चेकिंग नहीं करवाते हैं, हम तो ठप्पा मारते हैं भैया, अकाउंटेबल नहीं है हम तो ठप्पे में विश्वास कर रहे हैं। जैसे ही ठप्पा मारा, साइन किया, सिग्नेचर किया, ऊपर वाले लेवल पे पास किया, अब उसकी जिम्मेवारी है, मैं तो मुक्त हो गया। ये जो सोच है, इस सोच को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं
ताकि आपको पता चले कि अभी भी फॉर्म भरने में बहुत कमियां हैं और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपके और सहयोग की जरूरत है, आपके और कॉपरेशन की जरूरत है। बगैर आपकी हेल्प के ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। इतना आगे बढ़ गया, बहुत बड़ी बात है। इसको और आगे ले जाना है तो केवल आपकी मदद से बीआरसी, सीआरसी, डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले ऑफिसर जो स्कूल में फॉर्म भरने वाले हैं, केवल वो इसको ठीक करवा सकते हैं। डिसेमिनेशन की बात भी होती है कि साहब सारा डेटा डिसेमिनेट कर दो, आप पब्लिक डोमेन में डाल दो, ये डेटा की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है। हमारे स्कूल रिपोर्ट कार्ड 15 लाख स्कूल रिपोर्ट कार्ड पिछले 9 सालों से स्कूल वेब के ऊपर अवेलेबल है। आप बाद में देख लें इसको, स्कूल रिपोर्ट कार्ड .in और dice.in, ये दो हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके देखें हर स्कूल का रिपोर्ट कार्ड इंक्लूडिंग ऑल द स्कूल। हमारे यहाँ पे आसाम में करीबन 65,000 स्कूल है, उन सब का रिपोर्ट कार्ड भी वहां पे अवेलेबल है, आप जाके इसको देख लें। जब हमने पब्लिक डोमेन में डाला उससे भी हमें मदद मिलती है डेटा की क्वालिटी को बढ़ाने में, गुणवत्ता बढ़ाने में। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी पिछले कुछ दिनों में एक मेल मेरे पास में आ गया, बाद में फोन भी आया कि भैया ये डेटा फर्जी है आपका, ये सही नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन है। हमने कहा पूरे हिंदुस्तान में इतने लोग जुड़े हुए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हो गया बताइए तो सही आप। कि साहब ये डेटा सही नहीं है आपका, रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कि स्कूल में पक्की बाउंड्री वॉल है। उसने एक फोटो भेजा, वो वाशिंगटन में बैठे थे, एक फोटो भेजा, उसको क्लिक किया तो पता चला वो तो सब टूटी हुई बाउंड्री वॉल है, वहां तो कचरा पड़ा हुआ है, वहां जानवर भी घूम रहा है उसमें। हमने तुरंत उसको स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मार्फत उठाया, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएगा। हमारी ड्यूटी है कि आप तक इस बात को पहुंचाना, ठीक तो केवल आप ही करवा सकते हैं। एक बात तो ये हुई। अभी हम स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड है या नहीं ये डेटा इकट्ठा नहीं करते हैं, पहले किया जाता था। तो ये मान के चला जाता है कि हर स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड है। 5 साल पहले क्या हुआ, पंजाब में आ गया 720 स्कूल के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं। उनके शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा हाउ फनी दिस इज, ये तो पंजाब में हो सकता है, पंजाब तो सबसे बड़ा पर कैपिटा इनकम वाला है, यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने इंक्वायरी करवा दी और तब इंक्वायरी का रिजल्ट आया तो उससे ये पता चला। हेडमास्टर साहब ने कहा हमने सोचा लिख देते हैं कि बोर्ड नहीं है तो हमें और बोर्ड मिल जाएगा। देखिए इस तरह से फॉर्म भरा जाता था, लेकिन काफी बदलाव आ गया, काफी इंप्रूवमेंट हो गया है। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो कुछ जगह पे हो रहा है। हमने काफी उन्नति कर ली, काफी प्रोग्रेस कर ली है, काफी डेवलपमेंट हमारे यूनिफाइड टाइप्स में आ गए हैं, लेकिन छोटी छोटी कमियां और भी हमारे अंदर रह गई है। अभी एक और मेल आ गई, मैं आपको इसलिए बार बार ये सब चीजें बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि भरने में अभी भी बहुत कमियां हैं, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। कितना भी अच्छा आपका सॉफ्टवेयर हो, कितना भी जल्दी आपने डेटा इकट्ठा करके सारा प्रोसेस खत्म कर लिया हो, अगर डेटा की गुणवत्ता और क्वालिटी नहीं है तो ये सब चीज की करने की कतई कोई जरूरत नहीं। अभी फिर एक साहब का फोन आ गया, भैया डेटा तो गड़बड़ है, फर्जी है। मैंने कहा क्या हो गया साहब बताइए तो सही। कहता साहब आपका स्कूल रिपोर्ट कार्ड कहता है कि देयर इज नो हेडमास्टर इन द स्कूल एंड आई एम द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल। हमने समझाया जब ये फॉर्म पिछली बार भरा गया तो शायद आपकी पोस्टिंग वहां नहीं हुई होगी, आपकी नियुक्ति बाद में हुई होगी, या आपने पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा। काइंडली गेट इन टच विद द सीआरसी एंड बीआरसी दिस ईयर सो दैट योर नेम एज ए स्कूल हेडमास्टर आल्सो अपीयर्स ऑन द स्कूल रिपोर्ट कार्ड। ये दो तो बहुत ही लाइटर वेन में छोटी छोटी बातें आपको बताई, लेकिन अब जो बता रहा हूं बहुत ज्यादा सोचना चाहिए हमें उस सब पे, ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों कहीं कहीं हो भी जाता है। अभी एक बेंगलोर से हमारे पास में मेल आई और फोन भी आया, उन्होंने 2 स्कूल आईडी दिए मुझे। स्कूल आईडी आपको पता है, बस हमारे डाइस के अंदर 15,18,160 स्कूल 2013-14 में हमसे जुड़ गए थे। इस हर स्कूल का एक 11 डिजिट स्कूल आईडी है, कोड है। तो उन्होंने 2 जो बेंगलोर से सज्जन थे, ये हैज गिवन अस 2 स्कूल कोड और ये कहा कि जल्दी से जल्दी इन 2 स्कूल रिपोर्ट कार्ड को वेबसाइट से हटाओ, नहीं तो मैं आपको सू करूंगा, कोर्ट में ले जाऊंगा। घबरा गया हम तो भैया, आप जो देते हो वही हम तो ऊपर प्रेजेंट करते हैं, अब आप क्या देते हो आपको पता है। ईमानदारी से कभी भी बगैर किसी भी छेड़खानी के, बगैर डेटा जो भी आप देते हैं उसी को हम डिसेमिनेट करते हैं। और हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि आवर डेटा इज फ्री फ्रॉम ऑल द एरर्स, देयर आर ऑलवेज स्कोप ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट। तो उन सज्जन ने कहा डेटा हटा, आप ये 2 रिपोर्ट कार्ड हटा दीजिए, बहुत तो मैं तो आपको कोर्ट में ले जाने वाला हूँ। हम भी घबरा गए, फौरन ले गए, हटा दिए। उन्होंने कहा आपका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है
इस स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं। आज सुबह इन द मॉर्निंग आई विजिटेड स्कूल एंड आई हैव सीन कंप्यूटर, द फंक्शनल कंप्यूटर्स इन द स्कूल। और मैं अपने बच्चों का 800 रुपीज कंप्यूटर फीस दे रहा हूं और आपका स्कूल कह रहा है कि कंप्यूटर नहीं, आपका रिपोर्ट कार्ड कह रहा है कंप्यूटर नहीं। कुछ तो गड़बड़ है यार भरने में, कोई तो कमी रह गई है हमारे अंदर, अभी भी सही से नहीं भरा जा रहा है, अभी भी ईमानदारी से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। बट एक बात उन्होंने कही जो आपकी ध्यान से सुनी, उन्होंने कहा यस योर स्कूल रिपोर्ट कार्ड सजेस्ट दैट देयर इज नो हेडमास्टर इन द स्कूल। राइट, यू आर करेक्ट बिकॉज देयर इज हेडमिस्ट्रेस इन द स्कूल। तो दोस्तों ये सब बातें हम आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये पता चले कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज्यादा और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बहुत कमियां हैं। डेटा सही समय पे आ रहा है, ये तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेटा सब बिंदुओं के ऊपर, सब वेरिएबल्स पे आ रहा है, डिसएग्रीगेटेड डेटा आ रहा है, स्कूल, क्लस्टर, ब्लॉक, स्टेट, हर जगह पे आ रहा है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब तक डेटा की गुणवत्ता के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो हो गया डाइस से रिलेटेड बातें। दोस्तों आपका भी शायद मानना होगा, मेरे बहुत सारे दोस्त जो आज यहाँ नहीं है उनका भी यही मानना है, जैसे ही हमने सिग्नेचर और सील लगाकर हमने डेटा सबमिट कर दिया, ब्लॉक वाले ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट ने राज्य लेवल पे और स्टेट वालों ने न्यूपा को, तो हम ये समझते हैं कि हमारा काम तो हो गया, हमारा काम पूरा हो गया। ये नहीं है, हमारा तो ये मानना है कि हमारा काम अब शुरू हुआ है। डेटा का एनालिसिस कौन करेगा? आप ईमानदारी से देख लीजिए आपके यहाँ डेटा का एनालिसिस कितना हो रहा है। आवर डेटाबेस इज यूज्ड इन नेचर। 15,18,000 स्कूल का डेटा हमारे पास में है, उन सभी वेरिएबल्स के ऊपर डेटा अवेलेबल है जिसके ऊपर एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के प्लान बनाने के वक्त ये सब चाहिए। Every bit of information is available, but unfortunately the data analysis is not at all satisfactory, not optimal. ये डेटा केवल क्या प्लान बनाने के लिए है क्या? इसका और भी तो कोई उपयोग हो सकता है, और भी यूज हो सकते हैं। रिसर्चर्स तक ले जाए, रिसर्च स्कॉलर्स तक ले जाए, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्कूल एजुकेशन उन तक पहुंचाएं, वो कार्य तो हो ही नहीं रहा है। और ईमानदारी से देखिए सकता है तो 1 या 2 बंदे दे सकते हैं, बिकॉज अदर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डेटा एनालिसिस। प्लान तो हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाते हैं, उसमें 12 to 14 ऑफिसर्स भी है, बट एक्चुअल प्लान तो MIS कोऑर्डिनेटर 1-2 आदमी और बनाते हैं, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है प्लान कैसे बना। अब तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनेगा, उसके बेसिस के ऊपर ब्लॉक एजुकेशन प्लान बनाएंगे, ब्लॉक के बेसिस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट का बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस के ऊपर स्टेट का बनाएंगे, और ऐसे करके बॉटम से लगाकर टॉप अप हम जाएंगे और ऐसे प्लान बनाएंगे। बट दोस्तों अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। SMC हम कल भी खूब सारी यहाँ पे गुवाहाटी और दूसरे आसपास के जिलों में देख के आए हैं कि नाम तो सुना है, CCE का सुना है, स्कूल डेवलपमेंट SDP का सुना है, और भी सुने हैं, लेकिन ये कैसे कार्य चल रहा है, इसमें बहुत और गुंजाइश है, इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। ये सब केवल करवा सकते हैं तो केवल आप लोग ही इसको ठीक अच्छी तरह से करवा सकते हैं। मैं ये कह रहा था डेटा की एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले कार्य, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं या ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, we should undertake the diagnosis exercise. Where do we stand with particular reference to the objective which is given to us to perform? ये objective universal elementary education भी हो सकता है, universal secondary level of education भी हो सकता है। With a thorough analysis of the data, we should undertake the diagnosis of the data, and जब एक बार ये diagnosis exercise पूरी हो जाएगी तो हमें ये पता चलेगा which are educationally backward areas or blocks which are not at par with other districts or other blocks in our state or other at the district level. ऐसे कौन से एरिया है? जब आप ये डायग्नोसिस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एजुकेशनली एडवांस्ड लोकेशन है या ब्लॉक है, और एक एडवांस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक एजुकेशनली बैकवर्ड लोकेशन हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स है, वेयर डू दे स्टैंड सो फार एज यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन इज कंसर्न। ये हमें डेटा के एनालिसिस से पता चलेगा।
दूसरा है, हमें डेटा के एनालिसिस से पता ये चलेगा which are the focus group or the target groups because of which we have not yet achieved the goal of universal secondary level or elementary level of education in our district. ये फोकस ग्रुप है, ये टारगेट ग्रुप है, ये लड़कियां हो सकती है, रूरल एरिया हो सकता है, एससी बच्चे हो सकते हैं, एसटी बच्चे हो सकते हैं, या बाकी दूसरे बच्चे हो सकते हैं जिनकी वजह से we have not yet achieved the goal of universal elementary level of education. और जब ये डायग्नोसिस एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो इन दो बातों के अलावा हमें एजुकेशन प्रॉब्लम्स का भी पता चलेगा कि हमारे जिले के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर व्हाट आर द एजुकेशन प्रॉब्लम्स आर देयर. लड़कियां अगर सिस्टम में नहीं है तो उसके रीजंस क्या है. अभी तो ये हो रहा है कि एक के बाद एक 10-15 एजुकेशन प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग है अक्रॉस द 27 डिस्ट्रिक्ट, आपके 27 डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे ये प्रॉब्लम्स ऐसी कैसे लिखी हुई. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हमारी, वो केवल डेटा के एनालिसिस से, डायग्नोसिस एक्सरसाइज से, जिसको कि स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उससे निकल के ही आएगी और कोई दूसरा तरीका हमारे पास में नहीं है. ये डायग्नोसिस एक्सरसाइज जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, ये वैसे ही कार्य करेगा जैसा कि एक डॉक्टर करता है. जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं. छोटी मोटी बीमारी है तो डॉक्टर हमें एक एनासिन और एक एस्प्रो दे देगा और आप लकी है तो आप ठीक भी हो जाएंगे, आप कहेंगे बहुत अच्छा डॉक्टर है. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा. अगर थोड़ा ज्यादा सीरियस है आप और ज्यादा बीमारी है तो आपका बीपी भी लेगा, टेम्परेचर भी लेगा, ब्लड प्रेशर भी ले लिया, ईसीजी भी लेगा और मेडिकल टेस्ट भी लेगा. बेस्ड ऑन द आउटकम of these medical tests, doctor will reach on to the conclusion that what is the disease, and then only doctor is supposed to prescribe the medicine. हम तो ऐसे ही दवाइयां बांट रहे हैं सिस्टम के अंदर बगैर मर्ज जाने हुए, बगैर बीमारी जाने हुए. अगर हम इसी तरह से ये दवाइयां, ये मेडिसिन बांटते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि आगे निकट भविष्य के अंदर यूनिवर्सल एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे. तो अब हमारे पास में और कोई चारा नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, but to undertake thorough analysis of the data. There is absolutely no way but to thoroughly analyze the data. आपने अपने डेटा के एनालिसिस किया होगा. जैसे मैंने पहले भी बताया, we have covered 65,990 schools during 2013-14 in Assam. कुछ स्कूल अब इसमें से बढ़ जाएंगे. मेरे पास में 2-4 छोटे-छोटे आंकड़े हैं, उसको मैं आपके साथ में शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूं. एक बात तो इसके पहले, मैं डेटा एनालिसिस के पहले ये भी कहना चाहूंगा, अब समय आ गया है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन को भी एनालाइज करें. एलिमेंट्री वाले बंदे अपना अलग से कर रहे हैं, सेकेंडरी वाला अपना प्लान अलग से बना रहे हैं, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कुछ नहीं. यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग so far as secondary level of education is concerned without analyzing the status of elementary level of education with respect to all the 4 components of universalization such as universal access, enrollment, retention, participation and quality of education. अगर आप ये मान के चलें, आपके यहाँ पे टारगेट है यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन का 70% हम GER को कर देंगे. आप अकेले नहीं कर सकते. इसी तरह एक दूसरा टारगेट है हायर एजुकेशन में GER को 2020 के अंदर 30% कर देंगे. कोई जादू नहीं है. जब तक एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, एनफ नंबर ऑफ विल नॉट द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन विल नॉट इंप्रूव. सेकेंडरी लेवल का एनरोलमेंट तभी बढ़ेगा जब एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन है वो एनफ नंबर ऑफ एलिमेंट्री ग्रेजुएट 9th के अंदर भेजेगा. 9th के अंदर जब तक एडुकेट नंबर ऑफ बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो आप एनरोलमेंट रेशियो चाहे ग्रॉस हो या नेट हो, सेकेंडरी लेवल का आप नहीं बढ़ा सकते. और एलिमेंट्री लेवल में भी विदाउट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यू कैन नॉट इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द अपर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन. नहीं बढ़ा सकते. पिछले वर्ष 134 मिलियन बच्चे थे पूरे भारत में 1 से 5 में. उसमें से 5% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए. आपके 5% ऑफ 134 मिलियन 13 करोड़ 40 लाख बच्चों का बहुत बड़ा नंबर आता है. माता पिता, पेरेंट्स, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर जनरली हम कह देते हैं साहब हम क्या करें, वो तो स्कूल में भेजते नहीं है. जो स्कूल में रिटेन होता है कक्षा 5 तक पहुंच जाता है,
वो कक्षा 6 में ट्रांजिट नहीं होता है। जो 6 में ट्रांजिट हो गया वो 7-8 तक रुकता नहीं है। जो रुक जाता है वो 8वीं और 5वीं पास नहीं करता, और जो पास कर लेते हैं उनके पढ़ने लिखने के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सारे सर्वे, जैसे अभी यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि प्रथम ने कह दिया है कि आसाम के अंदर 22.9% बच्चे कक्षा 7 में कक्षा 1 की लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते। 32% बच्चे हैं कक्षा 7 में कक्षा वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 21% बच्चे हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये कोई नई बात नहीं है, ये सर्वे तो कल आया है। क्या हमें पता नहीं है कि हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने में कमी है, प्रॉब्लम हो रही है? क्या हमने ऐसे कोई रेडिकल चेंजेस किया क्या कि हर बार हर साल सर्वे कर करके ये बताया जाए कि तुम्हारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना लिखना नहीं आता है? हमने तो कुछ नहीं किया। ऐसा क्या हमने रेडिकल चेंजेस सिस्टम में कर दिया कि रातों रात हमारे बच्चों की पढ़ने की गुणवत्ता, लिखने की गुणवत्ता वो सब सही हो जाएगी? ऐसे कैसे हो जाएगा? वो जादू है क्या भैया? अरे भाई, सारे सरकारी स्कूलों में एक ऐसा माहौल बना दिया है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। सारी सरकारी स्कूल खराब नहीं है। सरकारी स्कूल के बोर्ड में जो पोजीशंस आती है वो रूरल एरिया सरकारी स्कूलों से अभी भी आ रही है। क्या ये माना जा सकता है कि सारे प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं? नहीं भैया, वो भी नहीं है। सारे प्राइवेट स्कूल अच्छा नहीं है, सारे सरकारी स्कूल खराब नहीं है, बट एक ऐसा माहौल पूरे भारत के अंदर बन गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई नहीं होती। ये सच भी हो सकता है और ये सच नहीं भी हो सकता है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और जब से राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हो गया है पूरे भारत के अंदर, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कुछ तरह का एग्जाम हो, टीचर भी चाहता है थोड़ा तो बच्चे के ऊपर कंट्रोल हो, कुछ एग्जाम हो। ज्यादातर टीचर्स का भी ये मानना है कि नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से बच्चा भी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, ले रहा है। टीचर भी ज्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्योंकि बच्चा तो रिटेन होगा ही, आगे चलता रहेगा। कुछ न कुछ कमी हमारे सिस्टम में रह गई है, जिसकी वजह से जो हम करना चाहते हैं वो क्लासरूम में ट्रांजिट नहीं हो पा रहा है। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो क्लासरूम में जब तक ट्रांजिट नहीं होगा, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। और ये कौन करवा सकता है? टीचर। टीचर इज द वेरी इंपॉर्टेंट की एक्टर हु कैन डिलीवर। अगर चाहे तो है, टीचर में कोई कमी नहीं है। कमी है क्या? कोई टीचर में कमी नहीं है। अगर वो ये एक बार डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको अचीव करने से नहीं रोक सकती है। एक सर्वे अभी हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने किया कि साहब 76% टीचर्स है वो हमेशा अब्सेंट रहते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं। भैया मैं तो ये कहता हूँ यार, जो मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, 24% टीचर्स है वो अब्सेंट रहते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ने कहा था। मैं ये कह रहा हूं कि फॉरगेट अबाउट दी 24% और 76% क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगा दो, हमारा काम तो हो जाएगा। वो स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं? इतना आपने प्रयास किया, आपने सारे बच्चों को एनरोल भी कर दिया। प्रथम की स्टडी भी कह रही है, डाइस भी कह रहा है कि एनरोलमेंट तो आपका सबका बढ़ गया, केवल थोड़े से बच्चे ही आउट ऑफ स्कूल रह गए। मैं कह रहा हूं कि भैया जो बच्चे सिस्टम में उसके ऊपर ध्यान लगाओ यार। आउट ऑफ स्कूल तो आता रहेगा, यूरोप अमेरिका में भी 100% नहीं है। ठीक है, उनको भी कोशिश करो, लाओ सिस्टम में, लेकिन जो सिस्टम में ऑलरेडी है उसके ऊपर तो ध्यान दे दें ताकि वो तो पढ़ लिख जाए। लेकिन ये कैसे संभव है? ये तो टीचर से ही संभव हो सकता है। पिछले वर्ष पूरे भारत के अंदर करीबन 2 मिलियन 20 लाख टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दिया। आपको मेरे से बेहतर पता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होती है। क्या नीड बेस्ड है? क्या टीचर की जरूरत के हिसाब से है? क्या डाइट उसमें इन्वॉल्व है? क्या टीचर की जरूरतों को, टीचर को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, ये तो ज्यादातर राज्यों में एससीईआरटी तय करता है। एससीईआरटी हर डाइट को या बीआरसी को किसी को बोलेगा भैया तुम्हें 3 प्रोग्राम करना है, 3 प्रोग्राम करना है, 3 दिन ड्यूरेशन होगी, 30 आदमी होगा, मल्टीप्लाई कर दो 120 से, इतना पैसा आ गया और करंट भी हो गया। ऐसे काम नहीं चलने वाला है जब तक ये पता नहीं चल जाए कि टीचर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ट्रेनिंग नीड क्या है। नीड बेस्ड ट्रेनिंग अगर हम कर लें तो आशा की एक उम्मीद है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वी कैन अचीव।
बाकी कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कुछ भी कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है, केवल टीचर को ही मोटिवेट करके जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट मेथड। ये छोटे से आंकड़े थे, जैसे मैंने आपको बताया, बता रहा हूँ, आसाम के अंदर प्राइमरी लेवल में ड्रॉप आउट रेट इज 6%, अपर प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट इज 7%। इस 7% का मतलब क्या हुआ? 2012-13 और 13-14 के बीच में 7% चिल्ड्रन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम अपर प्राइमरी क्लासेस एंड 6% चिल्ड्रन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस। 6% and 7% of the total children in 1 to 5 and 6 to 8 is a huge number। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 24 और 28%। 28% बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए अपर प्राइमरी 4 साल में, और 24% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए आपके प्राइमरी लेवल पे, which is also reflected in the retention rate, which is only 76% in Assam। जो 100 बच्चे हमने दाखिला दिया था क्लास 1 में 4 साल पहले, उसमें से केवल 76% बच्चे ही आपके यहाँ पे पहुंचे, बाकी सारे के सारे ड्रॉप आउट हो गए। और जो सिस्टम में रुक गया है उसका भी पता नहीं कि किस तरह की पढ़ाई लिखाई, उसमें क्वालिटी क्या है, वो सब चीजें। इसके अलावा एक दो और आंकड़े हैं मेरे पास में। आपका सेकेंडरी लेवल का जो ड्रॉप आउट रेट है वो है 27%। 27% बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो रहे हैं सेकेंडरी क्लासेस में, बट हायर सेकेंडरी लेवल में इट हैज कम डाउन टू ओनली 4.69%। सेकेंडरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो 9-10 में बच्चा आ रहा है उसकी क्वालिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये बोर्ड का रिजल्ट है, उसमें बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं। बहुत से स्कूल हमने देखी वहां पे 10%, 12%, 17%, 18% बोर्ड का एग्जाम है, और वो टीचर्स, उन स्कूल के टीचर्स का कहना है तो हम क्या करें साहब, जो 9th के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है उसको पढ़ना लिखने में बहुत परेशानी आ रही है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो पहले उसको काउंटिंग सिखाते हैं महीने भर, फिर उसको हम टेबल सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, उसके बाद में कहीं जाके वो थोड़ा सा ऊपर आता है, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द पास परसेंटेज व्हिच इज वेरी वेरी लो। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे ये आपका कैसे ठीक हो सकता है? आपका प्राइमरी टू अपर प्राइमरी ट्रांजैक्शन रेट इज 83%, व्हिच मींस जो बच्चे कक्षा 5 तक रुक जाता है उसमें से 17% बच्चे कक्षा 6 महीने जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और ट्रांजैक्शन रेट फ्रॉम एलिमेंट्री टू सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी लेवल है, वो केवल आपका 55% है, बहुत कम, बहुत नीचे है। अभी हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम नंबर से प्ले कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग विद द नंबर्स ओनली, फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि पिछले 5-6 वर्षों से न्यूपा है, वो एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो प्राइमरी लेवल पे और अपर प्राइमरी लेवल पे हम उसको भी कंप्यूट करते हैं। अगर एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1.00। मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। आसाम में प्राइमरी लेवल पे हमारा वैल्यू है 0.56, मैक्सिमम हो सकता है 1। तो अब इस 0.56 से 1 तक जाने के लिए कैसे प्लानिंग करें? पहले इंडिकेटर को तो देख लें, 24 इंडिकेटर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के, टीचर के, आउटकम के। इन 24 इंडिकेटर्स को एनालिसिस कर लें स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब पता चलेगा कितना पानी में है, वेयर डू वी स्टैंड। क्योंकि 0.56 से 1 ले जाना है आपको, उसके लिए पता तो चले कि हमारी कमियां क्या है, किस इंडिकेटर में हम पीछे हैं। और अपर प्राइमरी लेवल पे हमारा इंडेक्स है 0.64, और पूरे भारत में अगर देख लिया जाए तो प्राइमरी लेवल पे आप हैं 23 लेवल पे, और अपर प्राइमरी लेवल पे 20वें स्थान पे हैं। मैं केवल ये बताने नहीं आया हूं कि आपकी रैंकिंग सही है नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि समय आ गया है कि डेटा का एनालिसिस करें, ये पता लगा लें कि हमें कहाँ कमी है, किस डिस्ट्रिक्ट की वजह से हम इतना पीछे हैं, किस ब्लॉक की वजह से मेरा डिस्ट्रिक्ट इतना पीछे है। द टाइम हैज कम दैट वी शुड थोरोली अंडरटेक द एनालिसिस ऑफ द डेटा। देयर इज नो शॉर्टकट मेथड, और उसको आप डिले नहीं कर सकते, बट टू एनालाइज द डेटा। इसके लिए मेरा आपसे सुझाव है स्टेट लेवल से कि एक केयरफुली हम एक प्लान बनाए कैपेसिटी बिल्डिंग का। अभी तो एडोकिज्म है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आसाम में जो डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा का 6 महीने वाला कोर्स है, उस कोर्स को पूरा करने वाले डिप्लोमा होल्डर आसाम में सबसे ज्यादा